terror will never deter the resilience and resolve whether it of is the Punjab, Pakistani people whether it in is staying Sindh, eradicating and whether it terrorism is from our Balochistan. soil. People of Pakistan stand united against all form of terrorism and violence that threaten the security and The stability political of the leadership nation. मैं एक has दफ़ा फिर absolute clarity अफगान कि अबू हम किस यकूब नासूर को से याद लड़ रहे हैं. दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी. आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मजम्मत करते हैं. Now, if you go to the next, तो ये जो क्लैरिटी है ये सिर्फ पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम को भी है. पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में स्पेशली मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम की दहशतगर्दी के बारे में क्या राय है आपको सुना देता हूँ, सुनिएगा. 70 साल چې کوم دی په دې خپل زړه په جګر کې دی لمنځ ځای ورکړی دي خدا نه کوم دی دی په عمر کې دا نشي ویلې چې پاکستان زنده‌باد ځکه چې موږ دی هغه ورولي ورکا هغه مینه مو دې کا په افغانستان عوامو نه ورکا دی افغانانو چې موږ کوم د خپل زړه ورکړی دي هغه چې کوم دی په باندې نو زویم چې دې ته نشان خیدر ورکړي ولې چې دا خو غازیان هم دی جهاد یو که بس ترخګر ملک که زه اوس په دې ټیم باندې د ملک وزیر اعظم وي زما په خدای قسم دې دې له ما نشان خیدر ورکړو دا کوم چې ژوندي پاتې شوي دي. پہلے نمبر کو فوج سے کنا دو من اعتماد دے کنا دا پاکستان فوج دا فل دنیا نمبر 1 فوج ہے. पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर फ़ौज पाकिस्तान ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. पाकिस्तान खल चिकम दी जो पाकिस्तान उलिस चिकम दे अखबल फौज सरा ओसम वलार दे बियाबम वलार यो बियाबम वलार वी ټول دنا پاکستان فوج مناله کلا دښمن پاکستان باندې کوم صورت حمله کړی دی هغه ته د سید جواب ورکړی دی ستاري. Because we need to understand what the person on street in Khyber Pakhtunkhwa in the Pakistan is saying. तो ये कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को ये कभी भी बुरा भला नहीं करते. مختلف آرمی سره شانه بشون آرمی که یردار الحمدلله دیر بهترین دیز که سوچو کو حرب سوچونه ای سکوم آرمی نم کو پس نمبر دیز پاکستان آرمی کا پس نمبر पाकिस्तान سره بچای وی لوټ دا سار پسې دا وزار پسې دا پسې پولیس دا وی چې پاک فوج जिंदाबाद. यासीन मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब एक अच्छे इंसान है. अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक आर्मी चीफ किया हुआ है. जब इंडिया ने हमला किया था रातों रात उसने भरपूर जवाब दिया है. زما چې دا پاکستان کې څونه افغانیان دي چې دا پاک راغون کې خپل ملک ته واړي दुश्मन मुल्कونه چې کوم دي هغه افغانستان ډېر په اسانه استعمالول شي. افغانستان ته کلک شانتي تصور کی او ورته وی چې دلته ورشه دلته دا غوي راتګ هم آسان دي. इन्होंने सिर्फ सलाम पेश करते हैं अपने आर्मी चीफ साहब को कि वो डट के खड़े इतने मुश्किल हालात में और उन नौजवानों को उनकी शहादत राया कभी भी नहीं जाएंगे. یقینا زنګ فوج دی دا فخر دی او نن کې د پاکستان امیج ته ګوري نن کې د پاکستان نوم ته ګوري په ټول دنیا کې دا صرف د پاک فوج او خصوصا کم چې صفه سالار دی اسیم منیر فوج په دولت باندې او دا کم دغه شو نو دې ته بنیانو مرسوس ویل کی کنه مطلب چې کزمن آرمی کم د خپل کارکردګي او کم خپل دغه اختیار کو نو پاکستان سترګې اوچته شوې او په ټوله دنیا کې پاکستان فخر کوي. زموږ ټول عوام په خپل سره ولاړ دي او په کار هم دا چې دې ټایم کې موږ سخت جواب ورکړو چې آینده لپاره نور ملکونه هم داسې کار نه کوي. इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ फौज पाकिस्तान आवाम ये सब फौज का साथ होगा इंशाल्लाह. उसका ऐसे भरपूर जवाब हम लोग दे देगा. मोदी को ये समझ जाना चाहिए कि अब वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता. इस वजह से तो शक दुनिया भर में उसको शर्मिंदगी किसी को नहीं है. जिसको है शक उसकी वजह भी आपको पता है क्यों है इसको. पाकिस्तान है, अगर फौज है तो पाकिस्तान नहीं है. हमारे पाकिस्तान में अमन रहे लड़ाई नहीं चाहता. अगर हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको मजा चकाना चाहिए. हम अपने पाक वतन पाक फौज पाक फिजाइया और अफवाज के साथ खड़े. हम उन खारिजियों के शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं. और ये पैगाम पाकिस्तान का जो आदा हुआ इस साल दोबारा तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने बैठ के ये भी इस साल हुआ. तो ये क्लैरिटी आपके उलमा को भी है, मशाइख को भी है कि ये ख्वारिज कौन है और ये दहशतगर्दी की जंग में हम किस तरह हक पे खड़े हैं और किस तरह लड़ रहे हैं. जी इस साल एक और जो क्लैरिटी आई वो ये थी, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, हिंदुस्तान का अफगान तालिबान का दहशतगर्दाना नेक्सस. मुख्तलिफ तरीक़ों से आई लेकिन इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मिली आपको अक्टूबर के अवाइल में.
कि जब आप कि यहाँ पे उनके साथ झड़पें हो रही थी जिसमें आपने दहशतगर्दों को, टीटीपी को, फितना ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया, उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारजा है इस कब्ज़ा ग्रुप का, ये किधर था? ये ज़रा क्लिप देखें, ये मंजर ही काफ़ी बताते हैं कि ये नेक्सस क्या है। देखिएगा ज़रा, ये एक ही आगे पीछे दिन है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, बुत परस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ है हिंदुस्तानियों के साथ। तो वो ज़रा याद करें, वो जो ख्वारिज की निशानियाँ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए छोड़ी, उनको भी ज़रा याद करें और ये मनाजिर देखें। इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए हैं। ये है इनकी औकात, ये है इनकी असलियत। ये जो ज़र के ग़ुलाम हैं जिन्होंने लबादा पहना हुआ है इस्लाम का, जो ख्वारिजों के सबसे बड़े सरपरस्त हैं। जी, एक और क्लैरिटी जो है इसी गठजोड़ की, जो हिंदुस्तान की और अफ़गान तालिबान की इन ख्वारिज के दरमियान जो है, वो हिंदुस्तान का सोशल मीडिया और अफ़गानिस्तान का सोशल मीडिया भी दे रहा है, उनका मीडिया भी दे रहा है कि हम ऐसे हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं। क्योंकि इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। ये है इनका इस्लाम। ये सुनिएगा ज़रा, देखिएगा, समझ रहे हैं? रोकिएगा, वो रोकिएगा ज़रा, क्या कह रहा है वो हिंदुस्तान में बैठ के, वो हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। तो ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। आगे सुनिएगा, ये सारे रॉ के अकाउंट हैं, किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई, यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें, अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। आगे चलिएगा, वो दुनिया भी देख रही है कि कैसा राष्ट्रहित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। रोकिएगा जरा, आप इसको देख के हंस क्यों रहे हैं? ये उनका इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। ये नया हीरो मिल गया अफगानिस्तान को, एक नया अवतार मिल गया इनको। अब इसको पूछेंगे बैठ के, ये तालिबान जो अफगान तालिबान है। तो इसमें एक बंदा है फजल अफगान करके, उसने तो ओपनली बोल रहा है कि मोदी जी आप हथियार कब भेज रहे हो, हम लोग इनको इधर एंगेज करके रखेंगे, आप उधर से पीओके ले लो। ख्वाहिशात सुने इनके, ख्यालात सुने, ख्वाब सुने इनके।